ठीक है, तो आपको पता है कि वी आर डूइंग अ ब्रिज कोर्स, है ना. नाउ आई एम स्टार्टिंग अ लेक्चर. So you all know that we are doing a bridge course. In bridge course, the our days are allotted for the physics, chemistry, and biology. So in physics part, we have completed our day one. So in day one, we studied about the measurement. First topic we studied in our day one syllabus is content, means measurement. We have completed. We have been completed measurement. After measurement, we studied about rest and motion. So then we completed rest of motion. Then types of motion we have completed. Okay. Now in types of motion we studied that there are various types of motion, and when you define a motion, you can define the motion by the path, the type of path a object is following. Okay, a type of path object is following means what? If during a motion the path of a body is a straight line, okay, during a motion if the path of a body is a straight line, then that type of motion is called rectilinear motion. क्या बोलते हैं उसको बेटा? Rectilinear motion. क्लियर है? So now, Rectilinear. okay, and during a motion if the path of a body is curved, okay, during a motion if the path of a body is curved, then that motion is called curvilinear motion. Okay, that motion is called curvilinear motion. If the that curved path is parabolic, then that is called projectile motion. If the curved path is circular, then it is called circular motion. Okay, so we studied about when a body is traveling in a straight line, then it is called straight line motion or a rectilinear motion. When a body is moving on a curved path, then it is called curvilinear motion. And when a body is doing a motion to and fro about the mean position, okay, when a body is doing a to and fro motion about the mean position, then that motion is called oscillatory motion. Okay. Also we studied about the periodic motion. What is a periodic motion? If a body repeats its motion after a fixed interval of time, when a body repeats its motion after a fixed interval of time, then that motion is called periodic motion. Okay. Also we studied the rotational motion. Okay, so when a body rotates about the axis, about any axis, like earth is rotating about its axis, then its motion is called rotational motion. Rotational. We studied all the types of motion, only definitions and examples. In detail we study about the straight line motion or a rectilinear motion. So in today's topic, I will cover some important topics. So I'm just mentioning here what are the topics we are going to study today. Then we will, in our next session, we will move to tablet, and in tablet, I will show you some videos and the slides, so that by which you can more understand more the things what are in the rectilinear motion. Okay. So आपको Sir. भाई आपको टाइम टाइम पर ज्वाइन करना है, ठीक है. जो भी बच्चे आ रहे हैं, ये जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको टाइम 10 AM से अपनी क्लास है, मैं 10 पे स्टार्ट कर रहा हूँ. देन यू हैव इनफ टाइम टू गो एंड फ्रेश एंड देन कम आउट टू ज्वाइन द क्लास, to join the class on a time. Okay, so here today we study the rectilinear मोशन, और हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन और straight line motion. So we are going to study this motion. Okay, now when you are going to study that motion, any type of motion, then you have to know that what are the terms involved in particular motion. अच्छा, अब ये तो क्लियर है कि आप सबको ये समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता क्या है. ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं. इधर देखो आप, लेट्स सी दिस एग्जांपल. When you throw a ball in a vertically upward direction, when you throw a ball in a like this is a ball. When you throw a ball in a vertically upward direction, so then it will go from this A to B. It will go from A to B, then come again from B to A again. Okay,
when you throw a ball in a upward direction, vertically upward direction, vertically throw करना है आपको, ठीक है? So when you throw a ball in a vertically upward direction, then you can see here ball will go on this straight path, then come again downward on same straight path. So in this case, I can say that this body or this ball is doing a which kind of motion? कौन सा motion बेटा इसका? Rectilinear motion. या straight line? हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि क्या कर रहा है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है? सो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है, उसको अपन को स्टडी करना है, ठीक है? तो हम टर्म्स देख लेते हैं। देखो आप, जो टॉपिक अपन स्टडी करने वाले हैं ये है टर्म्स रिलेटेड to rectilinear motion, ठीक है? टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। जो पहली टर्म हम स्टडी करने वाले हैं that, अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टडी दैट टर्म, I want to give you a definition of vector and scalar. What is a vector quantity and what is the scalar quantity? So what is a vector quantity? आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है सबने? फिजिकल क्वांटिटी सबको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको की मेजर किया जा सकता है, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो वहां पर आपने फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, अभी उनको एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी बहुत इजी है, ध्यान से देखना आप क्या होता है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटी दोज है मैग्नीट्यूड And direction. एंड प्लस सेंस ऑफ, या आप सिंपली ये लिख दो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सिंपल, ठीक है? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? मैग्नीट्यूड, Only magnitude. हाँ, Only magnitude. मैग्नीट्यूड प्लस डू नॉट हैव डायरेक्शन। अभी आगे जाके हम स्टडी करेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है? आप एग्जांपल्स में बिल्कुल समझ जाओगे, पर अभी आप देखो यहाँ पर, you can see here and just remember that what are the vector quantities. So vector quantities are those quantities which have the magnitude plus sense of direction. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है? जिसे मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे एक स्टेटमेंट है कि स्पीड इज अ क्वांटिटी विच शोज हाउ फास्ट और स्लो अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनना, फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर देना कि स्पीड सेज दैट और शोज दैट अ बॉडी इज मूविंग हाउ फास्ट और हाउ स्लो। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है वेलोसिटी शोज a body is moving how fast or how slow in which direction, ठीक है? तो अब आपको इन स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होकर आंसर करना है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Scalar. स्केलर है, क्योंकि हमें स्पीड ये बता रही है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो चल रही है या मूव हो रही है। डायरेक्शन की कोई जानकारी उसमें, इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है। बट वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है? वेलोसिटी आपको बता रही है कि कोई भी बॉडी कितना स्लो या फास्ट मूव हो रही है और किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो जहां पर भी डायरेक्शन की बात आ जाएगी, और मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, देखो मैग्नीट्यूड तो इसमें भी है, मैग्नीट्यूड तो इसमें भी है, तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, पर जहां भी डायरेक्शन की बात आ जाएगी उसमें क्या होगा? वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर डायरेक्शन नहीं है तो खाली मैग्नीट्यूड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया नहीं आया? वेक्टर और स्केलर सबको? अच्छा, देखो एक छोटा सा अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि ये पेन है, दिख रहा है आपको सबको, मेरे हैंड पे रखा हुआ है। अगर इस पेन को मैं पुश करूं, ऐसे पुश करूं, तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर? फोर्स।
तो फोर्स Force. अप्लाई करने पर ये Force. पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है इधर उधर या पीछे आ जाएगा वापस। तो फोर्स sir. जो होता है उसमें डायरेक्शन होती या नहीं होती, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फोर्स फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप किसी भी बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आगे आगे अपन स्टडी करेंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा वेक्टर और स्केलर। ये चीज समझ में आई बेटा आपको, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी? यस सर ठीक है। यस सर अब हमारा जो टॉपिक है वो ये था टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। ये हमारा टॉपिक है, टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन। तो पहला जो हम फर्स्ट जो टर्म ले रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। फर्स्ट जो टर्म ले रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस के लिए हम एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि मान लो कोई पर्सन है, ही इज स्टैंडिंग हियर, ही इज अ पर्सन, ही इज स्टैंडिंग हियर, इस ए पॉइंट पर वो है और ए से उसको जाना है बी पर। ठीक है बेटा, ए से उसको कहाँ जाना है? बी पर जाना है। अब ए से बी जाने के लिए उसके पास ऐसे भी जा सकता है, इधर से भी ऐसे घूम के जा सकता है और ऐसे सीधे भी जा सकता है। तीन रास्ते हैं, ये इसका पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। रास्ता मतलब पाथ, PATH पाथ। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकंड पाथ एंड दिस इज अ थर्ड पाथ। जो फर्स्ट पाथ है, फर्स्ट पाथ में मान लो उसको 600 मीटर चलना पड़ता है। दूसरा वाला जो पाथ है मान लो उसको इसमें 200 मीटर चलना पड़ता है और इस वाले में उसको चलना पड़ता है 500 मीटर। ठीक है, उसको ए से बी तक जाना है। ठीक है, तो he can choose any path depending on in how much time he wants to reach the point B. Okay, he can choose any path, he can choose the path 1, path 2 and path 3 because whatever path he will choose, the destination is same. ठीक है, the destination is same, he can choose any path. But if I say that he has to reach the point B or the place B in a minimum time, then which path he should have choose? सेकंड पार्ट Second part Okay, I don't think that any one of you is having a doubt in this, that if I put a condition that he has to reach that point B in a minimum time, then he has to take this part 2. Otherwise बहुत सारी फुर्सत में है, वो बहुत आराम से जाना है, उसकी मर्जी है किधर से भी जाए, 1 से जाए, 2 से जाए, 3 से जाए। ठीक है, तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, देखना आप यहाँ पर, यानी डेफिनेशन बता रहा हूँ। जैसे कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ का मतलब होता है कि जिस भी पाथ से वो जाए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जिस भी पाथ से वो जाए उस पाथ की टोटल लेंथ जो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो फर्स्ट वाले से जाता है तो डिस्टेंस कितनी हुई बताओ? 600 मीटर 600 मीटर 600 मीटर होगी। पाथ की लेंथ लेनी है आपको, पाथ की लेंथ, पाथ की लेंथ ली जाती है डिस्टेंस में। अगर सेकंड वाले से जाता है तो कितना होगा डिस्टेंस? 200 मीटर मीटर होगा। और तीसरे वाले से जाते हैं तो कितना होगा बोलो? 500 मीटर होगा। ठीक है, समझ में आया? सो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट इज अ डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ, जो भी लेंथ को फॉलो कर रहा है, पाथ की लेंथ जो भी है उसका आप टोटल कर दो तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? दूसरी बात ये है कि व्हाट इज अ SI यूनिट ऑफ दिस? डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? डिस्टेंस इज अ लेंथ। मीटर पर आवर नहीं ना ना, ध्यान से देखो आप, डिस्टेंस इज अ और लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर मीटर होती है ना भाई, भाई आपने लास्ट मीटर की SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो यानी कि मीटर को स्मॉल m इसका सिंबल है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस की SI यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। ठीक है, सी पॉइंट लेते हैं। सी पॉइंट में आपको ये बताना है कि जो डिस्टेंस है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो आप ध्यान एक चीज या नोटिस करो, अगर मैं इसको यहाँ से भेजता हूँ कि भाई तू A से B तक जा,
अब ए से बी तक जा, पर मैं इससे ये नहीं कह रहा कि तेरे को सबसे कम टाइम में जाना है. सो ही कैन चूज एनी पाथ, he can choose any path. Then in that case, is he has some specific direction or not? बोलो. अगर कोई No, sir. कोई No, भी sir. डायरेक्शन नहीं होगी इस केस में, डायरेक्शन किसी से भी जा सकता है इधर उधर, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. आप ये भी कह सकते हो कि भाई इसको यहाँ से भेजा कि जा शॉप से कुछ लेके आ जा, तो शॉप पे गया. अब अगर अपन इसको ढूंढने जाए तो हमको कुछ पता नहीं कि कहाँ किस रास्ते से गया हुआ है. ये कोई सा भी रास्ता चूज कर सकता है, तो कोई सा भी पाथ चूज कर सकता है. सो ही डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इन केस ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. समझ में आ गया? डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. Scalar quantity. ठीक है. अब हम आपसे तीसरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. आपको ये बताना है कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करती है या नहीं करती. पाथ पे डिपेंड करती है. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. डिपेंड ऑन पाथ. Depend. बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा. बिल्कुल पाथ पर डिपेंड करती है. देखो बेटा, अगर मैं इस वाले पाथ से जाऊं, अगर मैं इस वाले पाथ से जाऊं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 600 मीटर. अगर मैं इस वाले पाथ से जाऊं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 200 मीटर. अगर मैं इस वाले पाथ से जाऊं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 500 हाँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने पाथ को चेंज किया तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि पाथ पर डिपेंड करता है. पाथ फंक्शन का मतलब होता है पाथ पर डिपेंड करता है. समझ में आया? ठीक है. एक पॉइंट और आपको याद रखना है इसमें, जो कि अपना ई पॉइंट है. जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल करने में आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? ठीक है. तो वो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर. डिस्टेंस का जो Speed फॉर्मूला upon होता time. है, डिस्टेंस इज इक्वल टू Speed into time. सम ऑफ टाइम. पाथ लेंथ. जो भी पाथ उसने फॉलो करा है उस पाथ का आपको सम करना है, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी. समझ में आया? जैसे कि हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं. एक पर्सन था, उसका इस तरह से वो ए बी सी डी, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर. ये पर्सन ए से लेके डी तक जाता है. बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? 2 किलोमीटर. ए से चलना चालू करता है और डी पॉइंट तक आ जाता है. ए से चल के डी तक आ जाता है. ए से बी जाएगा, बी से सी 6 जाएगा. kilometer. आंसर करो, आंसर. बाकी सब चुपचाप मत बैठो. 50 के करीब स्टूडेंट्स है अपने पास. ठीक है. और आई थिंक मैंने सबको एडमिट कर लिया है अब तो. भाई मैं चेक, 56 स्टूडेंट्स हैं. 56 स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा? 6 किलोमीटर आएगा. ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? आंसर कैसे निकालोगे? टोटल पाथ लेंथ, तो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना हो गया? 6 किलोमीटर हो गया. मान लो वो ए से चल के और घूम के वापस ए पर आ जाता है, तो डिस्टेंस कितनी? 8 किलोमीटर. बोलना है 8 kilometer. सब बोलो, भले ही कैसे ही बोलो, मैं सब सुनूंगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. डिस्टरबेंस होता है तो डाउट है आंसर सबको बोलना है. 8 किलोमीटर. सर. हाँ भाई. 8 किलोमीटर. सर वो डायरेक्ट ए से डी तक नहीं जा सकता क्या? डायरेक्ट ए से डी ऐसे कंडीशन दे रखी है. अभी नहीं. अभी अपन छोटे मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया है कि भाई ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी और डी से ए आ रहा है. पूरा घूम के आ रहा है. ओके सर. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन बनाया था. तो वो तो डिस्टेंस में किस किस को डाउट है? बोलो. सॉरी, डिस्टेंस में किसी को डाउट है आप में से? बोलो. No, sir. No, sir. नो सर. ठीक है. तो हमने अपनी पहली टर्म कर ली है. पहली टर्म क्या थी? डिस्टेंस थी. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी टर्म करते हैं, है ना? प्लेसमेंट. दूसरी टर्म, सेकंड टर्म करते हैं. अब सेकंड टर्म क्या है? ठीक है.
मैं वीडियो जो लोग जिस भी बच्चों को वीडियो चाहिए होगा मुझे मैसेज करना, मैं वीडियो दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो सेकंड जो टर्म है, सेकंड टर्म है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ ऐसे ही आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। आप गलत डेफिनेशन Okay, बोलनी है sir. आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ऑब्वियसली बिटवीन टू प्लेसेस, जिस भी दो प्लेस के बीच में जो जर्नी हो रही है उनके बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसी डायग्राम में, तो इस डायग्राम में मुझको ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? पहली वाली सेकंड One. Second. सेकंड कौन सी है भाई? Second. सेकंड वाली। Second. ठीक है, किसी को भी 56 स्टूडेंट में एक को भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलना, अपन रिपीट करेंगे। जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो मतलब सबसे छोटा और ऑब्वियसली दो प्लेस के बीच की होगी, जिन दो प्लेसों के बीच में जर्नी हो रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन ए से बी तक के बीच में जर्नी कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो रहा है उसका? 200 मीटर वाला। तो जो ये सेकंड वाला पाथ होगा वो किसको शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ठीक है बेटा। Displacement. तो मुझे ये बताओ, नाउ इन दिस केस we have a direction or not? अगर Sir, we have direction. We have. हाँ, We have. अगर हमने We ये have. कह दिया कि भाई We have. तो सबसे कम टाइम में पहुंचना है इधर, तो सबसे कम टाइम में तो वो एक ही रास्ते से जा सकता है, जो सबसे कम पाथ लेंथ है वो है 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसके अंदर डायरेक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, बोलो। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। देखो ये Kilometer. लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है, और लेंथ की एसआई क्या होती है? मीटर। Meter. मीटर आ जाएगा, ठीक है। अपन एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। यूनिट तो और भी होती है, पर हम अभी सर अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो सकता है ना। बाकी लोग म्यूट करो भाई, अपना म्यूट करो जब सर क्वेश्चन कर रहा है तो। हाँ बोलो। सर अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो किलोमीटर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर अभी हम कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं? एसआई यूनिट की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एसआई यूनिट की, जो कि हमारे बुक्स में न्यूमेरिकल हम करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं, इसलिए हम अभी एसआई यूनिट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। यस सर। तो मीटर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, बताओ। Vector. Vector. Quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि ये पाथ पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, बताओ। करती है। Yes, sir. मुझे ये बताओ, इसके अलावा नो सर नहीं करती। इसके अलावा कोई सा पाथ चूज कर सकते हो क्या? शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास दूसरे, ठीक है। तो ये पाथ पर डिपेंड तो नहीं करेगी, क्योंकि पाथ के तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचे, आपको शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है। पर अगर मैं मान लो बी पॉइंट को उठा के पीछे कर दूं यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये पाथ जो है चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। सर होगा। तो ये जो है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, Path on which we are ध्यान reaching. से देखो, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इसको बोला जाता है, मतलब इसको बोलेंगे अपन पॉइंट फंक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट फंक्शन। वो तो पाथ पे डिपेंड कर रही थी, और ये किस पे डिपेंड करेगी? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पॉइंट फंक्शन। डिस्टेंस क्या था? पाथ फंक्शन, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या लगाओगे डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का जब न्यूमेरिकल करोगे तो फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हम लगाते हैं जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए
जो फॉर्मूला लगाएंगे हम वो क्या फॉर्मूला होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? कुछ पूछना है आपको? नो सर। Yes, sir. तो No, sir, no doubt. नो डाउट, Sir, I have. डाउट है तो पूछो बेटा, बिल्कुल। Your voice is not coming. हाँ हाँ, सर देखो ए से बी जाएगा, बी से ए जाएगा, तो आपको टोटल पाथ लेंथ निकालनी है। टोटल पाथ लेंथ मतलब ए से लेके बी तक गया हुआ तो कितना हुआ उसका पाथ लेंथ 200 मीटर। 200. ए आ गया तो वापस कितना हो गया 200 मीटर। टोटल 200 meters. 400 मीटर। समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अब आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ। 0 meters. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो भैया डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही फॉर्मूला है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और कंप्लीट जर्नी की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट जर्नी में वो कहाँ से चला था, ए से चला था और वापस ए पर आ गया, तो उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हुई या नहीं हुई है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. सेम हो गई। यस सर। वो ए से ही चला था और ए पर ही वापस आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो सेम हो गई, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 meters. 0 आएगा। Zero. मीटर। ठीक है, 0 मीटर आएगा। समझ में आया नहीं आया आपको? आ गया सर। सर हाँ आ गया। पूछो पूछो पूछो, बोलो क्वेश्चन सर करो। एक बार ये जो फॉर्मूला है ना डिस्प्लेसमेंट का, उसका एक और एग्जांपल सिखा दो। हाँ एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखो इधर सर सर सिर्फ ये वाला आ सर गया ये जीरो कैसे आया? सर ये जीरो कैसे आया? जीरो, देखो ना, देखो आप इधर देखो, ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं, देखो जीरो बताते हैं आपको कैसा है। मान लो आप इस पे एक्सिस बना लो, एक्सिस बनानी आती है आपको, ये एक्स एक्सिस Yes, हो sir. गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ग्राफ पढ़ना आता है सबको, ठीक है? यस मुझे बताओ जब वो यहाँ पर होगा इस जगह, जब वो यहाँ पर है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, जब वो यहाँ पर है ए पॉइंट पर, आपका फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन पर कितनी, ओरिजिन पे कितना होता है वैल्यू, 0। यहाँ पर कितना था, 0। ध्यान से देखना, Yes. वो ए से लेके बी तक गया, तो बी पर कितनी एक्स बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने होंगे इसके, 200 होंगे नहीं होंगे? 100 meters. 200 मीटर हो गया ना, ग्राफ पढ़ना आता है ना सबको आपको, ठीक है? यस सर। Yes, sir. 200 मीटर, फिर ये यहाँ तक गया और यहाँ से वापस इधर आ गया, वापस इधर आ गया, एक्स ए की वैल्यू कितनी है बोलो, 0 मीटर। जीरो 0 मीटर है, Zero. तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हुई, फाइनल पोजीशन पूरा मोशन करके वो A. किस पॉइंट पर आया, ए पे के बी पे? ए ए पर आया, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई इसकी, एक्स ए हो गई। और चला कहाँ से था वो, ए B. ए से ही चला था, 0 आ जाएगा। अब समझ में आ गया, ए से समझ में आ गया, यस सर। दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ। सबको समझ में आया कि डाउट है कुछ? है बोलो बोलो। No, sir. बेसिकली फाइनल पोजीशन बी है, हाँ, तो वो और- 200 मीटर पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर मान लो सिर्फ वो ए से, मैंने क्वेश्चन ही यही बनाया था अगला वाला, देखो आप अगर मान लो वो सिर्फ ए से लेके बी तक जा रहा है, ध्यान से देखना बेटा, है ना, जिन्होंने भी क्वेश्चन करा है, ए से लेके बी तक जा रहा है और अब अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है बेटा? अब हमें 100 meters. निकालना है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी बोलो, एक्स बी होगी कि एक्स ए होगी, बोलो? एक्स बी XB. XB की फाइनल पोजीशन हो गई, और चला कहाँ से था वो, ए से, तो एक्स ए उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है?